بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم. قال الله تعالى في كتابه العظيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل: أومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال قائل: وما الوهن؟ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: حب الدنیا وکراہیت الموت. حاضرین جمعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پیش کی اس کا پہلے سیدھا سا ترجمہ بتا دوں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قریب ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ امتیں تمہارے اوپر اس طرح اکٹھا ہوں گی تمہیں ختم کرنے کے لیے، تمہاری شان و شوکت کو ختم کرنے کے لیے. جس طریقے سے کھانے والے اور بھوکے لوگ پیالے پر متوجہ ہوتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں. کسی پوچھنے والے نے یہ سوال کیا: کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: بل انتم کثیر، بلکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے کہ سمندر کا جھاگ ہوتا ہے، یعنی اس کی جیسے کوئی وقعت نہیں ہوتی ہے سمندر کی جھاگ کی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العزت تمہاری ہیبت، تمہارا رعب تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکال دے گا اور تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا. صحابہ کرام میں سے کسی نے سوال کیا: وہن کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت. یہ اس حدیث کا سادہ سا ترجمہ تھا. اب میں اصل ٹاپک کی طرف چلتا ہوں. اگر مسلمانوں پہ سرسری طور سے ایک نظر ڈالی جائے تو کسی عقل مند، ہوش مند، درد مند دل پہ کم سے کم 3 قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اگر کوئی شخص اسلام کا حامی ہو، اسلام کے تعلق سے درد دل رکھتا ہو اور مسلمانوں پہ ابتدا سے لے کر کے اب تک کے نظر ڈالتا ہے تو کم سے کم 3 طریقے سے اثرات اس کے دل میں ہوتے ہیں. پہلا اثر تو دل میں یہ ہوتا ہے کہ مسرت، خوشی یہ کہ کیا وہ زمانہ تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آفاقی دعوت کو لے کر کے اٹھے تھے. گنتی کے چند لوگ تھے جنہیں انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے اور وہ پوری دنیا کی اصلاح کے لیے اٹھے تھے، پوری دنیا کا جغرافیہ بدلنے کے اٹھے تھے اور ہر چیز سے انہوں نے دشمنی مول لے لی تھی صرف اللہ کے پیغام کو بلند کرنے کی. اور ہوا ایسا ہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ منورہ میں کم سے کم 3 مرتبہ مردم شماری ہوئی مسلمانوں کی کہ مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی. پہلی مردم شماری میں مسلمانوں کی تعداد 500 تھی، دوسری مردم شماری میں 600 اور 700 کے درمیان تھی اور تیسری بار مسلمانوں کی تعداد جو ہے تقریباً 1500 تھی. اس وقت مسلمانوں نے چین کا سانس لیا اور یہ کہا کہ ایک زمانہ تو ایسا تھا کہ جب ہم خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کو سوچتے تھے تو نہیں پڑھ پاتے تھے، اپنے گھروں میں تنہا نماز پڑھتے تھے یا دار ارقم میں یا کسی کھو میں جا کر کے نماز پڑھتے تھے اور ہر طرف سے اچک لیے جانے کا خوف تھا.
अब तो अल्लाह का शुक्र है कि हम 1500 की तादाद में। अभी हम गौर करते हैं, देखते हैं तो इस्लाम के असल मरकज से कोसों सैकड़ों मील दूर मुसलमानों की तादाद इतनी ज्यादा नजर आ जाती है, इतनी ज्यादा नजर आ जाती है कि इतनी तादाद उस जमाने में ख्वाबों में भी नजर नहीं आती थी। ये मसरत की बात है कि क्या वो लोग पैगाम लेकर के उठे थे और पूरी दुनिया पर छा गए। लेकिन दूसरा मकाम जो दिल में पैदा होता है मुसलमानों के देखने के बाद, वो हैरत ये कि इस तरह मोरो मलख की तरह होने के बावजूद, पूरी दुनिया पर मुसलमान छा जाने के बावजूद, उसके बाद उसकी हालत कैसे क्या हो गई। गौर करने का मकाम है कि ज्यादा से ज्यादा वो भी मुसलमान कहलाते थे, कम से कम हम भी मुसलमान कहलाते हैं। वो कम थे और सारी दुनिया पर भारी थे, और हम सारी दुनिया के बोझ बने हुए हैं। हमें गौर करने का मकाम है कि आखिर ये इनकलाब और ये पस्ती, इनकलाब के बाद ये पस्ती, उरूज के बाद ये ज़वाल आया है। पहली बात तो मसरत हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर इसके अदवार को देखने के बाद पूरी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, अक्सर बेशतर लोगों को मालूम है कि क्या से क्या हुआ। अल्लामा इकबाल ने उसी की तरफ इशारा भी किया है कि मगर मैं क्या कहूं तुमसे कि शुतरबानों का गहवारा, जहां गिरो जहां दारो जहां बीनो जहां आरा। ये जो शुतरबान, ये ऊंटों के चराने वाले, दुनिया को लीड करने वाले लोग है, दुनिया को आगे बढ़ाने वाले लोग। और अल्लामा इकबाल ने उसी गजल में एक जगह ये कहा था कि तुझे आबा से अपनी कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार तू साबित वो सैयारा। और असल जो मैं सुनाना चाहता हूं वो ये है कि तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में। अल्लामा इकबाल ने कहा था हम लोगों की हालत को देख करके और उनकी हालत को देख करके कि तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव में ताजे सरे डाला। ये सूरत हाल थी। और अब की सूरत हाल देख करके अल्लामा इकबाल ने इसका भी बहुत रोना रोया है। इससे पहले मैं चंद बातें ये बयान कर दूं, अभी जो मुसलमानों की हालत है इस्लाम के ताल्लुक से उनके दिल में कितना दर्द है। किसी शायर ने ये कहा कि हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। यानी वो क्या दौर था और अभी क्या दौर है। हम में से बीसियों बल्कि सैकड़ों ऐसे हैं जिनको कलमा तक मालूम नहीं, हजारों की तादाद ऐसी है जिसको कलमा का माना तक मालूम नहीं, सैकड़ों ऐसे हैं जो मुसलमानों के लिए नुकसानदेह, करोड़ों की तादाद ऐसी है जो अपने आप को इस्लाम की तरफ मंसूब करना मुनासिब नहीं समझते। ऐसे भी बहुत सारे हैं जिनको गैर सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि मुसलमान और इस्लाम की नाकामी के लिए या उनको बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी इतनी तादाद जो मुसलमानों की है, जो बज़ाहिर मुसलमानों जैसे नाम है, लेकिन उनकी वजह से इस्लाम का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व नामूस का सिर्फ और सिर्फ समझिए कि बदनामी का सबब बनते हैं और कोई फायदा उससे नहीं। हम गौर करें, ऐसी जगहें जो मुसलमानों के नजदीक उनके जिगर गोशे से ज्यादा अजीज थे, जिनकी कीमत मुसलमानों ने एक एक ऐसे सिपा सालार के जरिए अदा की थी कि अगर उनमें से कोई एक होता और आज हम में से कोई करोड़ नहीं होते फिर भी काफी था। साद बिन मुआज हैं, उबैदा बिन जर्राह हैं, मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, मोहम्मद बिन कासिम हैं, सलाहुद्दीन अयूबी हैं, नूरुद्दीन जंगी है। ऐसे अफराद जिनमें से अगर कोई एक होता और हम में से करोड़ों नहीं होते फिर भी कुछ नहीं होता। इस्लाम के ताल्लुक से आलिमिया रहमतुल्लाह अलैह ने ये मिसाल दिया है कि जैसे कोई शख्स बूढ़ा हो और अपनी औलाद को देखे फलता फूलता हुआ, देखने के बाद उसके दिल में खुशी हो कि चलो हमारी औलाद है, औलाद की औलाद है, लेकिन आखिरी उम्र में जब उसकी हालत दिगरगूं हो जाए और उसके हलक में एक कतरा पानी टपकाने वाला कोई न हो, उस वक्त वो यही सोचेगा कि काश के ये न होते तो बेहतर था।
न होने पर अफसोस नहीं होता, लेकिन होते हुए भी ये अपने नहीं। तो हसरत मसरत के बाद जो है हैरत इस बात की है कि मुसलमानों की तादाद इतनी ज्यादा है कि मरकज इस्लाम से कोसों मील दूर जहां भी जाए तो देखें मुसलमान है। लेकिन अफसोस यह है कि मुसलमानों में इस तरीके के अफराद बहुत ज्यादा है, जिसका रोया है आलिमिया रहमतुल्लाह अलैह ने, जिसको मैंने सिलसिलावार बताया कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कलमा तक मालूम नहीं और न वो सीखने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी कुरान पढ़ने की कोशिश नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दस्तूर हयात के तौर पे हमें कुरान अता किया था। ये कुरान जो है ये तुम्हारे लिए दस्तूर है, ये आईन है, लेकिन पूरी की पूरी जिंदगी गुजर जाती है, कुरान खोलने की नौबत नहीं आती। और मैंने इशारा किया था, सिर्फ नाम लेना जरूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं, मैं दोबारा इसको कह रहा हूं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, या जिनके जरिए उनकी अप्रोच, उनकी पहुंच इतनी ज्यादा है कि जिनके जरिए इस्लामी ममालिक के वो खित्ते जो मुसलमानों के नजदीक दिल से ज्यादा अजीज थे और जिगर के टुकड़ों से ज्यादा अजीज थे, वो खित्ते मुसलमानों के जा रहे हैं। और हर एक को इसका अंदाजा हो सकता है। तो इन सब चीजों पे गौर करने के बाद अंदाजा होता है कि बहुत हैरत ही है, क्या वो कौम जिनकी जिंदगी में, जिनकी पूरी कौम की जिंदगी में एक बार भी स्पेन का वाकया हो गया हो, वो क्या कौम सुकून से रह सकती है? अभी हम खुद इस मुल्क में, अपने मुल्क में गौर कर लें थोड़ा सा कि जहाँ के मसाजिद, औकाफ की चीजें हैं, औकाफ के अमलाक हैं, खानकाहें हैं, या दूसरी जो मुसलमानों से मंसूब चीजें हैं, वो धीरे धीरे मुसलमानों के हाथ से जा रहे हैं, या वैसी कोशिशें की जा रही हैं, या और बहुत सारी कोशिशें की जा रही मुसलमानों को पस्त करने के लिए। इस तरह के वाकयात जिस कौम में हो रहे हों और उस कौम के नौजवान, उस कौम के अफराद गहरी नींद में पड़े हुए हों, तो क्या हैरत नहीं होगी इस कौम की? अब यह है कि आखिर मकाम जो आता है वो है इबरत का। अगर हमने अभी अपने आप को संभालने की कोशिश नहीं की तो फिर वही हालत होगी जो इससे पहले हो चुकी है हम लोगों के साथ, या दीगर अक़वाम के साथ जो अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिए। वो इबरत का मकाम अल्लाह ना करे कि आए। और हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि हम अपने तौर पे जो चाहे करें। हमारे लिए दो रास्ते हैं, एक ये है कि जो हमारे बस में नहीं है उसके लिए सिर्फ दुआएं कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है कि जो हमारे बस में है, यानी हमारी नस्लें हैं या हमारे दरमियान जो नौजवान रहते हैं, उनकी सही तरबियत करना जरूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूशकुल उमम अन तदाअ अलैकुम, कि बहुत करीब है कि दूसरी उम्मतें इकट्ठा होकर के तुमको खत्म करने की कोशिशें करेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया ऐसा होकर के रहेगा। लेकिन हमारी तरफ से क्या कोशिश होनी चाहिए? ये मसाइल हमारी नजरों के सामने ना आए। अगर ये लिखा होगा कि ऐसा होना ही है तुम्हारी नजरों के सामने, तो हमारी कोशिशों की वजह से अल्लाह ताला हमें माफूअन नहीं समझेगा। यूशकुल उमम अन तदाअ अलैकुम, एक वक्त ऐसा आएगा कि दूसरी उम्मतें इकट्ठा हो जाएंगी तुम्हें खत्म करने के लिए। इस हदीस की इख्तियार करने का असल दाइया जो मेरे दिल में आया, उसकी वजह यह है कि चंद दिनों पहले, बस इसी हफ्ते में किसी साहब ने बताया था कि मैं घर ढूंढ रहा था फला जगह, और सिर्फ एक खास कम्युनिटी के होने की वजह से सबने इनकार कर दिया, और उन्होंने ये कहा भी कि इस कौम के अलावा दूसरे जिस कौम के लोग आएंगे उनको हम देने को तैयार। तो मुझे ये समझ में बात आई, वैसे आप भी समझ सकते हैं कि जो सूरत हाल है, जो वीडियोस आ रहे हैं, जिस तरीके से माहौल क्रिएट किया जा रहा है, बिल्कुल इस हदीस के मुआफिक है कि ऐसी ऐसी कौमें जो एक दूसरे की खून की प्यासी थी, सिर्फ मुसलमानों की वजह से वो इकट्ठा हो रही। ये एक वक्त ऐसा आने वाला है कि तमाम कौमें तुम्हें खत्म करने के लिए इकट्ठा हो जाएंगी। कमा तदाअल अकलतु अला क़सातिहा, जिस तरीके से भूखे लोग खाने के प्याले पर टूट पड़ते हैं। क़ाल क़ाइलुन, किसी पूछने वाले ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अब मिन क़िल्लतिन नहनु यौमैदिन, है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हमारी तादाद उस दिन कम होगी? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला,
वलाकिन्नकुम कसीर वअंतुम गुस्साउन का गुस्साई सही, लेकिन तुम बहुत ज्यादा होगे, लेकिन तुम्हारी हैसियत समंदर के झाग के बराबर होगी। वला यंसअन्नल्लाहु मिन सुदूर अदुव्विकुम अल महाबत, और अल्लाह ताला जो है तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से रोब और खौफ निकाल देंगे। ये बहुत बड़ी चीज होती है। वला यंसअन्नल्लाहु मिन सुदूर अदुव्विकुम, तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से अल्लाह ताला हैबत को निकाल देगा और तुम्हारे दिल में वहन डाल देगा। और वहन के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दुनिया की मोहब्बत और मौत से कराहियत। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।